سب سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات سے متعلق جڑی خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ کنٹونمنٹ الیکشن وارڈ نمبر 3 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ، نون لیگ کے امیدوار اختر رسول 321 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں۔ آزاد امیدوار محمد خالد اسد 249 ووٹ لے کر پیچھے رہ گئے۔ پی ٹی آئی کے قلب عابد خان صرف 71 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ، روہی ٹیلی ویژن اسکرین پر 321 ووٹ آزاد امیدوار ہیں انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ آزاد امیدوار محمد خالد اسد نے 249 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے قلب عابد خان 71 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار اختر رسول نے 321 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر وارڈ نمبر 3 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ نون لیگ کے امیدوار اختر رسول 321 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ آزاد امیدوار محمد خالد اسد 249 ووٹ لے کر پیچھے رہ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے قلب عابد خان صرف 71 ووٹ حاصل کر سکے۔ ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن وارڈ نمبر 3 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار اختر رسول 321 ووٹ لے کر پہلی پوزیشن پر رہے، جبکہ آزاد امیدوار محمد خالد 249 ووٹ حاصل کر کے پیچھے رہ گئے۔ پی ٹی آئی کے قلب عابد خان صرف 71 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ آج صبح سے ہی پولنگ کا عمل جاری تھا۔ 5 بجے پولنگ کا عمل اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع کیا، اور اب یہ مختلف پولنگ سٹیشن سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ وارڈ نمبر 3 کے غیر حتمی مکمل نتائج منظر عام پر آ چکے ہیں، جہاں پر نون لیگ کے امیدوار اختر رسول 321 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ آزاد امیدوار محمد خالد اسد 249 ووٹ لے کر پیچھے رہ گئے۔ پی ٹی آئی کے قلب عابد خان صرف 71 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ وارڈ نمبر 1 کا بھی مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ منظر عام پر آ چکا ہے، جہاں پر آزاد امیدوار رانا اشرف 719 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ غیر سرکاری نتیجہ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار جاوید انجم 608 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے، وارڈ نمبر 1 کا بھی مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ منظر عام پر آ چکا ہے، جہاں پر آزاد امیدوار رانا اشرف 719 ووٹ حاصل کر کے کامیاب رہے، جبکہ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار جاوید انجم 608 ووٹ حاصل کر سکے۔ ملتان کینٹ الیکشن وارڈ نمبر 1 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ، آزاد امیدوار رانا اشرف 719 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار جاوید انجم 608 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ آزاد امیدوار رانا اشرف 719 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار جاوید انجم 608 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ ملتان انتخابات کنٹونمنٹ بورڈ کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ آزاد امیدوار رانا اشرف 719 ووٹ لے کر کامیاب، دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار جاوید انجم 608 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ ملتان کینٹ کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج انتخابات ہوئے، 5 بجے تک پولنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ پولنگ جیسے ہی ختم ہوئی، اس کے بعد ووٹنگ اکاؤنٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی، اور اب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آزاد امیدوار رانا اشرف وارڈ نمبر ان کا 1 ملتان کینٹ اسٹیشن 719 ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ جاوید انجم آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، 608 ووٹ لے سکے ہیں یہ، اور ملتان کینٹ کے وارڈ نمبر 1 سے جڑی یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 719 ووٹ لے کر آزاد امیدوار رانا اشرف کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار جاوید انجم ہیں، 608 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین۔ حتمی نتائج غیر سرکاری آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ملتان کینٹ الیکشن میں وارڈ نمبر 1 کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ منظر عام پر آ چکا ہے، جس میں آزاد امیدوار رانا اشرف 719 ووٹ لے کر پہلی پوزیشن پر رہے، جبکہ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار جاوید انجم 608 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ ملتان کی اگر بات کی جائے تو ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ملتان بھر میں 10 وارڈ تھے، جبکہ 16 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل دن بھر جاری رہا۔ کارکنان اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے رہے۔ مرد اور خواتین کو ملا کے 17,825
लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है, जबकि 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा, जिसके बाद अब पोलिंग की गिनती शुरू हो चुकी है वोट्स की और गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। वार्ड नंबर 1 का भी मुल्तान से मुकम्मल गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है, जहां पर आजाद उम्मीदवार राना अशरफ ने जीत अपने नाम कर ली है। राना अशरफ 719 वोट हासिल करके कामयाब रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार जावेद अंजुम हैं जो 608 वोट हासिल कर सके हैं। मुल्तान कैंट इलेक्शन वार्ड नंबर 1 का गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा, आजाद उम्मीदवार राना अशरफ 719 वोट लेकर पहली पोजीशन पर रहे। मुल्तान कैंट वार्ड नंबर 6 का गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा रोही टेलीविजन स्क्रीन पर आजाद उम्मीदवार वंस अगेन सना अकबर 467 वोट लेकर कामयाब रहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आजाद उम्मीदवार आरिफ रजा 280 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सना अकबर ने 467 वोट हासिल किए हैं, जबकि आरिफ रजा ने 80 वोट हासिल किए हैं। 280 वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। दोनों आजाद उम्मीदवार हैं। आरिफ रजा जो हैं वो 280 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सना अकबर ये भी आजाद उम्मीदवार हैं, 467 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। मुल्तान कैंट वार्ड नंबर 6 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सना अकबर को लेकर जितने भी नताज हमने आपके साथ शेयर किए हैं, तमाम नताज में तमाम वार्ड्स के अंदर सना अकबर जो हैं वो आरिफ रजा से आगे ही दिखाई दे रही हैं। 280 वोट हासिल किए हैं और सना अकबर ने 467 वोट हासिल किए हैं। फातिमा, लीड की बात कर ली जाए तो लीड का जो मार्जिन है वो भी बहुत ज्यादा दिखाई देता है सना अकबर के उन तमाम वार्ड्स के अंदर जहां जहां आरिफ और सना मद्दे मुकाबिल दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इमरान, अभी अगर इस वार्ड की भी बात की जाए तो तकरीबन 200 वोट से बरतरी हासिल की है सना अकबर ने। आजाद उम्मीदवार है ये और 467 वोट लेकर कामयाब रही हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार आरिफ रजा 280 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। मुल्तान कैंट वार्ड नंबर 6 का भी गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। आजाद उम्मीदवार सना अकबर ने जीत अपने नाम कर ली है, 467 वोट हासिल करके कामयाब रही, जबकि आजाद उम्मीदवार आरिफ रजा 280 वोट ही हासिल कर सके हैं। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। लम्हा बलम्हा रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर रिजल्ट मंजर आम पर आ रहे हैं। गैर सरकारी गैर खत्मी नतीजा वार्ड नंबर 6 का भी मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है, जहां पर आजाद उम्मीदवार सना अकबर 467 वोट लेकर कामयाब रही हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आरिफ रजा है जिन्होंने सिर्फ 280 वोट हासिल किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, मुल्तान कैंट वार्ड नंबर 6 का भी गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा मंजर आम पर आ चुका है। आज सुबह से ही पोलिंग का अमल जारी था, जबकि बड़ी तादाद में वोटर्स ने आकर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मुल्तान डिवीजन भर से 17,825 मर्द और खवातीन थे, जिनमें से अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो 9,333 वोट थे और फीमेल की अगर बात की जाए तो 8,492 खवातीन थी जिनके पास हक राय दही था और उन्होंने आकर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर 16 पोलिंग स्टेशन थे, जहां पर आज सुबह से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा, जिसके बाद गिनती का अमल अब शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ वार्ड से गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजे मंजर आम पर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 का मुकम्मल गैर खत्मी नतीजा गैर सरकारी नतीजा भी सामने आ चुका है, जहां पर एक बार फिर से सना अकबर ने जीत अपने नाम कर ली है और 467 वोट लेकर पहली पोजीशन पर रही हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार आरिफ रजा हैं जो कि 280 वोट हासिल कर सके। आरिफ रजा 280 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर सना अकबर हैं, 467 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। वार्ड नंबर आपको बताते चलें, वार्ड नंबर ये 6 है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सना अकबर पहले नंबर पर, वोट हासिल किए 467। आजाद उम्मीदवार आरिफ रजा वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं 280। मुल्तान कैंट इलेक्शन वार्ड नंबर 7 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, आजाद उम्मीदवार शमशाद अली अंसारी 396 वोट के साथ पहले नंबर पर। आजाद उम्मीदवार नासर अली एडवोकेट 318 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के इरफान अंसारी 115 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। नून लीग के शेख मोहम्मद यासीन चौथे नंबर पर वोट हासिल किए हैं इन्होंने 68। मुल्तान कैंट इलेक्शन वार्ड नंबर 7 का गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा रोही टेलीविजन स्क्रीन पर शमशाद अंसारी 396 वोट लेकर
पहले नंबर पर विराजमान। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार नासिर अली एडवोकेट, वोट हासिल किए हैं 318। जमात इस्लामी के इरफान अंसारी, वोट इन्होंने हासिल किए हैं 115, पोजीशन इनकी तीसरी, जबकि नून लीग चौथे नंबर पर है। शेख मोहम्मद यासीन नून लीग के ये उम्मीदवार थे, इन्होंने वोट हासिल किए हैं 68। वार्ड नंबर 7 का मुल्तान इंतखाबात कैंटोनमेंट बोर्ड के नताइजात की टेलीविजन स्क्रीन पर आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान कैंट इलेक्शन पर। वार्ड नंबर 7 का भी मुकम्मल गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है, जहां पर जीत अपने नाम की है आजाद उम्मीदवार शमशाद अली अंसारी ने। इन्होंने वोट हासिल किए हैं 396, जबकि आजाद उम्मीदवार नासिर अली एडवोकेट 318 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अगर बात की जाए जमात इस्लामी के इरफान अंसारी की, तो ये तीसरे नंबर पर हैं और वोट इन्होंने हासिल किए हैं 115। नून लीग के शेख मोहम्मद यासीन 68 वोट ले सके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं वार्ड नंबर 7 का भी मुकम्मल गैर खत्मी और गैर सरकारी नतीजा मंजर यहां पर आ गया है रूही की टेलीविजन स्क्रीन पर। लम्हा बलम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के बारे में। मुल्तान के वार्ड नंबर 7 का भी मुकम्मल नतीजा मंजर यहां पर आ चुका, जबकि आजाद उम्मीदवार शमशाद अली ने जीत अपने नाम कर ली। 396 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि आजाद उम्मीदवार नासिर अली एडवोकेट सिर्फ 318 वोट हासिल कर सके और दूसरे नंबर पर रहे। बात की जाए जमात इस्लामी के इरफान अंसारी ने 115 वोट हासिल किए हैं, जबकि नून लीग के शेख मोहम्मद यासीन चौथे नंबर पर रहे, सिर्फ 68 वोट हासिल कर सके हैं। मुल्तान कैंट इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के बारे आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 7 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर खत्मी नतीजा सामने आ चुका। आजाद उम्मीदवार शमशाद अली अंसारी 396 वोट लेकर आगे रहे हैं। लीड है ये इनकी, 396 वोट इन्होंने हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार राना नासिर अली एडवोकेट हैं, जो कि सिर्फ 318 वोट हासिल कर सके। जमात इस्लामी की अगर बात की जाए तो इरफान अंसारी ने 115 वोट अपने नाम किए हैं और सबसे आखिर में नून लीग के शेख मोहम्मद यासीन हैं, जो कि सिर्फ 68 वोट हासिल कर सके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं वार्ड नंबर 7 मुल्तान के कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार शमशाद अली अंसारी 396 वोट के साथ आगे रहे। मुल्तान कैंट इलेक्शन वार्ड नंबर 7 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 396 वोट शमशाद अली अंसारी के पलड़े में रहे। आजाद उम्मीदवार नासिर अली एडवोकेट 318 वोटर्स को राम करने में कामयाब हो सके। जमात इस्लामी के इरफान अंसारी ने 115 वोट वसूल किए हैं, जबकि नून लीग के शेख मोहम्मद यासीन चौथे नंबर पर हैं। स्कोर इन्होंने किया है 68 स्कोर इन्होंने किया है। मुल्तान कैंट इलेक्शन वार्ड नंबर 7 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आजाद उम्मीदवार शमशाद अली अंसारी 396 वोटों के साथ पहले नंबर पर। आजाद उम्मीदवार नासिर अली एडवोकेट 318 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के इरफान अंसारी 115 वोट हासिल करने में कामयाब, नून लीग के 68 वोट। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन बारे टोटल 10 वार्ड्स में से 8 वार्ड्स का गैर खत्मी नतीजा रूही ने हासिल कर लिया है। वार्ड नंबर 4 और 5 में ताहाल शहरी रिजल्ट के मुंतजर हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन टोटल 10 वार्ड्स में से 8 वार्ड्स का गैर हतमी नतीजा रोही ने हासिल कर लिया। वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 में ताहाल शहरी रिजल्ट के मुंतजर हैं। वोटों की गिनती का यह सिलसिला आप मुलाहिजा कर सकते हैं। वोटों की गिनती का सिलसिला इस वक्त जारी है। 10 वार्ड में से 8 वार्ड्स का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रोही ने हासिल कर लिया है। अपने नाज़रीन के साथ ये नतीजा अनाउंस भी किया है। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम से पूछ लेते हैं। वसीम, कहिएगा कहां पर खड़े हैं, कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नतीजे रहते हैं? जी बिल्कुल, बात करते चलूँ तो इस वक्त मैं कैंट के मेन बाजार में जो है वो मौजूद हूँ। बात करते चलूँ तो 10 वार्ड थे जिनके अंदर से 8 जो है उनका नतीजा जो है वो अब तक रोही ने हासिल कर लिया, जिसमें एक सीट पर नून लीग जबकि 7 पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीतने में कामयाब हुए। 2 वार्ड अभी ऐसे हैं जिनके नताइज जो हैं वो रहते हैं। 10 में से 8 वार्ड का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो मौसूल हो चुका है। एक सीट पर नून लीग जबकि 7 पर आज़ाद जो है वो कामयाब हुए। और इसी हवाले से बात करते जिन्हें रह जाने वाले 2 वार्ड में 4 नंबर वार्ड जो है वो भी शामिल हैं, जिसमें शहरी जो है वो अभी तक जो है इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यहाँ पर जो वहीद कुरैशी हैं उनके जीतने के चांसेस जो हैं वो इस हवाले से ज़्यादा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, कैसे खुशी है, कैसा जश्न जो है वो मनाने के लिए आपने तैयारी जो है वो की हुई है, क्या कहेंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی نصیب فرمائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو کر ہم عوام کی خدمت کریں گے. اللہ نے ہمیں فتح دی ہے. کامیاب ہو کر جو عوام کی فتح خدمت جو ہے وہ کی جائے گی، کیا کہیں گے، کتنا پرجوش ہے، کس طریقے سے جشن کو منانے کا سب بہت لوگ پرجوش ہیں جی. آزاد امیدوار کو اس لیے کامیاب کرایا ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے، بہت تنگ تھے، اس لیے اکثریت آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جی. یہ اکثریت جو ہے وہ آزاد امیدوار کی کامیاب ہوئی. کیا کہیں گے، تقریباً 8 کے قریب جو ہے وہ اس وارڈ سے کینڈیڈیٹ تھے اور یہ سب سے اہم وارڈ میں جو ہے وہ شمار ہو رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اوورآل میں اس وارڈ کو؟ ماشاءاللہ ہم لوگ بہت خوش ہیں. آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے. الحمدللہ آج ہم نے پی ٹی آئی کا یہاں سے صفایا کر دیا. الحمدللہ آنے والا وقت ہم لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے بہت بہتر ہوگا. یہ بھی بتائیے گا کیا منشور تھا اس پارٹی کا؟ اگر بات کرتے چلیں تو زیادہ لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ یہیں پر آزاد ہی نظر آیا. کیا کہیں گے، وہ منشور کیا تھا؟ وحید صاحب جو ہے ماشاءاللہ ایک بہت رحم دل اور بہت ہی مخلص انسان ہے. غریب عوام کا خیال کرنے والے ہیں. الحمدللہ وہ علاقے کے اندر خوشحالی لائیں گے اور بہت سے معاملات ہیں جو ترقیاتی کام ہے وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. ترقیاتی کام جو ہیں وہ بھی ہوں گے. اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، آپ کی طرف چلتے ہیں. کیا کہیں گے، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس وارڈ کے اندر جو کامیابی ہے وہ آزاد امیدوار کی ہوگی. یہ آزاد امیدوار کی اس لیے کامیابی ہے کہ پی ٹی آئی نے اور نون لیگ نے جو ہے نا اس کو سپورٹ کی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ مہنگائی کھا گئی اور نون لیگ کو تکبر کھا گیا. نون لیگ کا بھی جنازہ جو ہے وہ اسی وجہ سے نکلا کہ اس نے تکبر کھا گئے. اور انشاءاللہ العزیز وحید قریشی صاحب جو ہے وہ اچھا کام کریں گے. امید بہت زیادہ ہے انشاءاللہ. کی جا رہی ہے کہ جس کو سپورٹ کیا ہے وہ اچھا جو کام ہے وہ اس حوالے سے کریں گے. اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ شہری موجود ہوں گے. کیا کہیں گے، بہت امپورٹنٹ یہ وارڈ ہے جس کے اندر ہم کھڑے ہیں. 8 تقریباً کینڈیڈیٹ تھے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہاں سے وحید صاحب جو ہیں وہ جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اس میں عرض یہ ہے کہ انگلش میں کہتے ہیں ایز یو سو شل یو ریپ. جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. یہ اس کی کارکردگیوں کا نتیجہ ہے. جو حسن کارکردگی بیان کی جائے میں 2 گھنٹے لگا دوں گا آپ کو. جیسا بو گے ویسے ہی کاٹو گے. تو لوگوں کے صبر ہیں. اس کے ہر کام میں، ہر بات میں، کسی معاملات میں بھی اس نے کسی کو اگنور نہیں کیا. تو یہ انہی سزاؤں کے قابل تھا. اس سے بھی بدتر کہ اسے سزا ملی جائے. آپ دیکھ لیجئے فار ایگزامپل یہ کوئی الیکشن ہوتا ہے کہ صبح کینڈیڈیٹ کو مارنا شروع کر دیے. اکیلا وہ اور اس کی سارے گھر کی عورتیں، کیونکہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ تھا، وہ ساری کی ساری بہنیں. کتنا بڑا. اور دیکھیے وہ صابر آدمی تھا. اسے نتیجہ کیا نکلا؟ اگر وہ صبر نہ کرتا تو الیکشن پوسٹ پون ہو جاتا. جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نتیجہ یہ دکھا دیا. اور دوسری طرف دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے جیسا کیا اس نے ویسا اس نے بھی بول دیا. جیسے مار کھایا ویسے آپ بھی پٹ گئے. تو اس میں یہی عرض ہے کہ انشاءاللہ یہ بڑا نوجوان آدمی ہے، نڈر ہے، بے باک ہے، ایماندار ہے، لوگ غریبوں کی مدد کرتا ہے ہر طریقے سے. اور بڑے دینی اس کی خدمات ہیں جو ناقابل بیان ہے. کہ جشن کو جو ظاہری بات ہے ایک خاص عرصے سے محنت جو ہے وہ اس پر کی جا رہی تھی. امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ فتح جو ہے ان کے. کیسے جشن کو منانے کے لیے آپ لوگوں کی تیاریاں ہیں، کیا کہیں گے؟ اس میں آپ بلیو کریں کہ یہ اکیلے پپے کی محنت نہیں ہے. یہاں کی پوری پاپولیشن کا بچہ اس چیز کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے یہاں پر ایسے تھا کہ جیسے اس کی عزت کا مسئلہ ہے. کیوں کہ یہ چیز اس نے اپنے لیے ایسی کھڑی کر دی تھی کہ ایسی باتیں جو ہے اس کے سامنے آتی. ایک اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے اس میں 2 برادری رہتی ہیں. ہم نے 30-35 سال میں الیکشن دیکھا، لڑا. یہاں پہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ یہاں ایک کسائی برادری اور ایک خان برادری، انہوں نے بھی یہ سب کیوں اس کے خلاف تھے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کیا چیزیں کرتی رہی؟ لوگوں سے ڈاکے مارتے رہے اور کیا کرتے رہے. الیکشن میں دیکھیں، الیکشن کسی کا اور کسی کو برا بھلا کر کے کہنا بچے جو بدتمیزی کریں. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. جو جشن ہے اس کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. لوگ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ خوش ہیں. آپ کی طرف بڑھیں گے، آپ سے بات کریں گے کہ کس حوالے سے جو جشن ہے وہ دیکھ رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے جشن کو منانے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کی؟ بس انشاءاللہ کیا کہتے ہیں جو ہے پورا من طریقے سے منانے کا ہے.
कोई ज़्यादा यानी कि शोर शराबा कुछ नहीं, पुरअमन तरीके जिस तरह है जश्न मनाया जाएगा। पुरअमन तरीके से जश्न जो है वो मनाया जाएगा। क्या कहेंगे, तमाम तर इलेक्शन को किस नहर से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, उसकी अपनी एक शख्सियत भी है, उसका लोगों के वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, वार्ड नंबर 4 और 5 ऐसे वार्ड नंबर हैं जहां पर अभी नताज आना बाकी हैं। 10 में से 8 वार्ड्स का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रोही ने लम्हा बलम्हा अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया है। जो ही नताज हमें वार्ड नंबर 4 और 5 से मौसूल होंगे वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। वहां पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं और इस वक्त वसीम शहजाद वहां पर मौजूद थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। बहरहाल जो पोलिंग थी वो 5 बजे ख़त्म हो गई थी और जितने भी वोटर्स थे उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे में अब गिनती का सिलसिला जो है वो जारी है। बहुत सारी जगहों पर मामलात आज ख़राब भी हुए हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ ही देर बाद रिजल्ट आ जाएगा। वार्ड नंबर 2 से आज़ाद उम्मीदवार गुलाम जिलानी 158 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। ये फॉर्म 45 आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। वार्ड नंबर 3 से जो है उसका नतीजा मुलाहिजा कर सकते हैं। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर जितने 4 और वार्ड नंबर 5, 2 ऐसे वार्ड हैं जहां के नताइज आना बाकी हैं। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन और रोही ने 10 में से 8 वार्ड्स का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हासिल कर लिया है। लम्हा बलम्हा नाज़रीन के साथ रोही ने शेयर किया है। अशरफ राना है 1158 वोट हासिल किए हैं। इन्होंने वार्ड नंबर 2 से आज़ाद उम्मीदवार गुलाम जिलानी ने 158 वोट लेकर ये पहले नंबर पर हैं। वार्ड नंबर 3 में मुस्लिम लीग नून के अख्तर रसूल 321 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 6 से आज़ाद उम्मीदवार अकबर 467 वोट लेकर कामयाब हुई हैं। वार्ड नंबर 7 से शमशाद अली अंसारी 396 वोटों के साथ पहले नंबर पर विराजमान हैं। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल साउथ पंजाब रोही जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा है। 10 में से 8 वार्ड्स का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रोही अनाउंस कर चुका है। वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 के इंतखाबात जो हैं वो उनके नताइज आना बाकी हैं और जो ही ये नताइज मौसूल होते हैं हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के बारे आपको आगाह कर रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन मुल्तान से 10 में से 8 वार्ड्स का गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा रोही ने हासिल करके अपने नाजरीन को बता दिया है, जबकि अभी वार्ड नंबर 4 और 5 का रिजल्ट आना बाकी है, जबकि शहरी खासे मुंतजर दिखाई दे रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नाजरीन। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन टोटल 10 वार्ड्स में से 8 वार्ड्स का गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर चुके हैं, जबकि वार्ड नंबर 4 और 5 का रिजल्ट आना अभी बाकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन टोटल 10 वार्ड्स में से 8 वार्ड्स का गैर खत्मी और गैर सरकारी नतीजा मंजर आम पर आ चुका है। गैर सरकारी नतीजा दें। आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद खान 164 वोटों के साथ आगे निकल गए। जमाती इस्लामी की सरफराज रमजान 53 वोटों के साथ पीछे रहे हैं। वार्ड नंबर 10 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा फार्म 45 रोही टेलीविजन स्क्रीन पर 164 वोट आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद के हिस्से में आए। पहले नंबर पर ये विराजमान हो गए। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी के सरफराज रमजान 53 वोट वसूलने में कामयाब रहे। पोजीशन इनकी बनती है दूसरी। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान के वार्ड नंबर 10 का भी गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है, जबकि आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद जीत चुके हैं। 164 वोट के साथ इन्होंने जीत अपने नाम की है, जबकि जमात इस्लामी के सरफराज रमजान 53 वोट के साथ पीछे रह गए। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन वार्ड नंबर 10 का भी गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर आ गया, जबकि जीत अपने नाम खुर्शीद अहमद ने करवाई है। खुर्शीद अहमद 164 वोट के साथ आगे निकल गए, जबकि जमात इस्लामी के सरफराज रमजान दूसरे नंबर पर आए हैं, 53 वोट हासिल कर सके हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 10 मुल्तान का गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद जीत चुके हैं। जीतकर 164 वोट हासिल किए।
जबकि जमात इस्लामी के सरफराज रमजान 53 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन वार्ड नंबर 10 का भी गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद जीत अपने नाम कर चुके हैं। जीत कर 164 वोट हासिल किए, जबकि जमात इस्लामी के सरफराज रमजान 53 वोट के साथ पीछे रहे। मुल्तान कैंट वार्ड नंबर 10 का गैर खत्मी मुकम्मल नतीजा मंजर-ए-आम पर आ चुका है। आज सुबह से पोलिंग का अमल जारी था। 5 बजे पोलिंग का अमल रोक दिया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ वार्ड्स में वोटों की गिनती का अमल जारी था और अब एक एक करके तमाम वार्ड से गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजे मंजर-ए-आम पर आने लगे हैं। वार्ड नंबर 10 का भी गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा मंजर-ए-आम पर आ चुका है, जहां पर आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद 164 वोट के साथ जीत अपने नाम कर चुके हैं। जबकि जमात इस्लामी के सरफराज रमजान की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 53 वोट ही अपने नाम करवा सके हैं। वार्ड नंबर 10 का गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर चुके हैं। आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद 164 वोट के साथ जीत चुके हैं। जी हां, 164 वोटों के साथ जीत का टिकट कटा लिया आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद खान ने। जमात इस्लामी के सरफराज रमजान 53 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मुल्तान कैंट वार्ड नंबर 10 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 164 वोट के 163 वोट के साथ जीत गए हैं। जमात इस्लामी के सरफराज रमजान 53 वोटों के साथ पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद 163 वोट के साथ जीत गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर ये उम्मीदवारों की तस्वीर भी आप मुलाहिजा कर सकती हैं। ये दो तस्वीर जो हैं इस वक्त वार्ड नंबर 10 से मुतालिक हैं, जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट करें। 163 वोट हासिल करने में खुर्शीद अहमद कामयाब हुए हैं, जबकि 53 वोट हासिल किए हैं जमात इस्लामी के सरफराज ने। आपको बता रहे हैं 163 वोट के साथ जीत गए हैं आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद खान। जमात इस्लामी के सरफराज रमजान 53 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वार्ड नंबर 10 मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड का नतीज हम आपको बता रहे हैं और आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद खान 164 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं। वार्ड नंबर 10 का भी गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा मंजर-ए-आम पर आ चुका है, जो कि आजाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद 163 वोट के साथ जीत अपने नाम करवा चुके हैं। जमात इस्लामी के सरफराज रमजान पीछे रह गए, सिर्फ 53 वोट हासिल कर सके। 110 वोट से ये लीड हासिल की गई है। मुल्तान के वार्ड नंबर 9 का भी गैर खत्मी मुकम्मल नतीजा मौसूल हो चुका है। आजाद उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड सादिक सेखम 121 वोट के साथ कामयाब, जबकि आजाद उम्मीदवार ताहिरा नसीम 40 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं वार्ड नंबर 10 के बाद वार्ड नंबर 9 का भी गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आजाद उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड सादिक सेखम बरतरी हासिल कर चुके हैं, 121 वोट हासिल करके कामयाब रहे, जबकि आजाद उम्मीदवार ताहिरा नसीम 40 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही हैं। आजाद उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड सादिक ज़ईम 121 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आजाद उम्मीदवार ताहिरा नसीम 40 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुल्तान कैंट वार्ड नंबर 10 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आजाद उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड सादिक ज़ईम 121 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आजाद उम्मीदवार ताहिरा नसीम 40 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। 10 यहाँ पर वार्ड थे, 10 वार्ड के अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने मैदान मारा है। वार्ड नंबर 9 का ये नतीजा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुल्तान कैंट वार्ड नंबर 9 मेजर रिटायर्ड सादिक ज़ईम 121 वोट, आज़ाद उम्मीदवार ताहिरा नसीम 40 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही हैं। याद रहे यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, ताहम ये फॉर्म जो हैं वो और ऑफिसर्स के वो भी आप अपनी रोही टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सादिक ज़ईम 121 वोटों के साथ पहले नंबर पर, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। इसी तरह ताहिरा नसीम 40 वोट हासिल करने में कामयाब रहीं, पोजीशन इनकी बनती है दूसरी, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। मुल्तान का कैंट वार्ड नंबर 9 का ये नतीजा है जो इस वक्त हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड सादिक ज़ईम ने 121 वोट लेकर फतह का ताज अपने सर पर सजा लिया। आज़ाद उम्मीदवार ताहिरा नसीम 40 वोटों के साथ
پیچھے ہیں. آگے 121 ووٹوں کے ساتھ میجر ریٹائرڈ صادق ہیں, 121 ووٹ حاصل کیے. وارڈ نمبر ان کا 9 ہے. اسی طرح طاہرہ نسیم وارڈ نمبر ان کا 9 ہے, ووٹ حاصل کیے ہیں 40 اور پوزیشن ان کی بنتی ہے دوسری. اور آزاد یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے. کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے بارے میں لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ رکھ رہی ہے روہی کی ٹیلی ویژن اسکرین پر. آپ یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. ملتان کینٹ وارڈ نمبر 9 کا غیر ختمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو چکا, جبکہ آزاد امیدوار میجر ریٹائرڈ صادق زعیم 121 ووٹ لے کر کامیاب رہے. آزاد امیدوار طاہرہ نسیم 46 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی ہیں. جبکہ اگر بات کی جائے وارڈ نمبر 8 کی تو اس کا بھی غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ منظر عام پر آ چکا. آزاد امیدوار یعقوب ناصر 64 ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون کے امجد مجید شیخ 60 ووٹ حاصل کر کے ہار چکے ہیں. آزاد امیدوار محمد انور نے 49 ووٹ حاصل کیے ہیں. ملتان سے وارڈ نمبر 9 کا بھی مکمل غیر ختمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ چکا ہے, جبکہ آزاد امیدوار یعقوب ناصر 64 ووٹ حاصل کر سکے. وارڈ نمبر 7 کی اگر بات کی جائے تو اس کا بھی غیر سرکاری غیر ختمی نتیجہ منظر عام پر آ چکا, جبکہ جیت کا سہرا جاتا ہے آزاد امیدوار شمشاد علی انصاری کو, جنہوں نے 396 ووٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. جبکہ اگر بات کی جائے آزاد امیدوار ناصر علی ایڈوکیٹ کی تو صرف 318 ووٹ حاصل کر سکے. جماعتی اسلامی کے عرفان انصاری نے 115 ووٹ حاصل کیے. جبکہ اگر آگے بڑھے بات کریں وارڈ نمبر 6 کی تو وارڈ نمبر 6 کا غیر ختمی غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار ثنا اکبر نے یہاں پر جیت اپنے نام کروائی ہے. 467 ووٹ کے ساتھ کامیاب رہی ہیں, جبکہ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار عارف رضا 280 ووٹ حاصل کر سکی ہیں. وارڈ نمبر 6 میں ثنا اکبر جیت اپنے نام کر چکی ہیں, 467 ووٹ حاصل کیے ہیں. روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.